تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں، کیونکہ اس کے شان شان، اس کی آواز کو سننے کے لیے ہم خدا کی تعظیم میں کھڑے ہوں گے۔ اور میری درخواست ہے بردر دانش سے کہ وہ خدا کے منصوب کے لیے دعا کریں اور آج کے کلام کے لیے دعا کریں کہ جب خدا کا خادم، اس کا بندہ کلام کرے تو یقیناً زندگیاں بدل گئیں۔ بھائی کے ساتھ مل کر ہم دعا کریں گے۔ خدا کو دوست کا شکر کرتے ہیں اس وقت اس گھڑی کے لیے مہربان کریں، انہوں نے توفیق بخشی کہ ایک اپنی پورے پاک قدموں میں جھک سکیں۔ مہربان کریں اس حاضر جوائب کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں، میں ایک دفعہ سب کو وہ تو توفیق بخشی کے تیرے قدموں میں جھک سکیں۔ خدا کو دوست مجھے یہ دعا رکھتا ہے اپنی قدرت پر، آج اس کلام کے لیے میں خاص دعا کرتا ہوں، اصل فہد کے لیے محض باتیں محض کلام نہ رہے بلکہ آپ کے شعور کی مانا میں سب پر اثر ہے۔ مہربان کیا یسوع، ہم سب کی گزارشوں کو، شکر گزاریوں کو سن اور اپنے بندوں کو مسئلہ تاکہ وہ جو بولے وہ ہم سب پر اثر ہو اور ہم سب پر عمل کریں اور اس پر عمل کر کے زندگی اسی طرح سے گزارنے کی کوشش کریں۔ جو کچھ مانگا سو پایا تیرے زندہ اور جلالی ہے۔ آئیے ہم اپنی زوردار تعلیم خدا کے کلام کو کریں۔ اسی کے نام میں سب کو اسلام، خدا ہم کی شکر گزاری کرتے ہیں اس نے آج کا ہمیں یہ دن بخشا۔ بتھیرے ایسے لوگ تھے جو شاید ہم سے قدرے بہتر تھے لیکن آج کا دن نہ دیکھ پائے، لیکن یہ خداوند کا فضل ہے کہ خداوند نے ہمیں ایک اور موقع دیا کہ ہم اپنے خداوند کی ہم کو ستائش کرتے ہوئے اس نئے سال میں داخل ہوں۔ ہاللیلویا، تشریف رکھیے گا۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے گھاس سوکھ جاتی ہے، پھول کملا جاتا ہے۔ یہ مطلب کہ ہر شے کا ٹائم لیمٹ ہے، اپنے وقت سے ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، لیکن خداوند کا کلام نو ایکسپائری ڈیٹ، وہ اب تک قائم رہے گا۔ ہاللیلویا، خداوند کا کلام جس کی ایکسپائری نہیں ہے، وہ کل آج اب تک، وہ ہر دور میں ہر شخص کے لیے ہر موسم میں ہر طرح کے حالات میں قوت بخشتا ہے، تسلی بخشتا ہے۔ ہاللیلویا، آئیے پرانے عہد نامہ میں سے دیکھیں گے خروج کی کتاب اور اس کا 12واں باب، بڑا مشہور واقعہ ہے، ہم نے کئی دفعہ پڑھا، کئی دفعہ سنا۔ چند ایک باتیں ہیں، چند ایک نکتے ہیں جن پہ توجہ کرنا بڑا ضروری ہے۔ خروج کی کتاب اس کا 12واں باب، اتنے نواں سال چڑھے گا جی، لیکن نیو ایئر کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، نیو ایئر کے پلانز کیا ہونے چاہیے، یہ خداوند اپنے لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہے۔ 12ویں باب کی پہلی آیت سے، پھر خداوند نے ملک مصر میں موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا شروع اور سال کا پہلا مہینہ ہو۔ بس اسرائیلیوں کی ساری جماعت سے کہہ دو کہ اسی مہینے کے 10ویں دن ہر شخص اپنے آبائی خاندان کے مطابق گھر پیچھے ایک برا لے، اور اگر کسی کے گھرانے میں برا کھانے کے لیے آدمی کم ہو تو وہ اور اس کا ہمسایہ جو اس کے گھر کے برابر رہتا ہے دونوں مل کر نفری کے شمار کے موافق ایک برا لے رکھے، اجتماعی قربانی کا لنڈا لگے۔ تم ہر ایک آدمی کے کھانے کی مقدار کے مطابق برے کا حساب لگانا۔ تمہارا برا بے عیب اور یک سالہ نر ہو، اور ایسا بچہ یا تو بھیڑوں میں سے چن کر لینا یا بکریوں میں سے، اور تم اسے اس مہینے کی 14ویں تک رکھ چھوڑنا۔ اور اسرائیلیوں کے قبیلوں کی ساری جماعت شام کو اسے ذبح کرے، اور تھوڑا سا خون لے کر جن گھروں میں وہ اسے کھائے ان کے دروازوں کے دونوں بازوؤں پر اور اوپر چوکھٹ پر لگا دیں،
اور وہ اس کے گوشت کو اسی رات آگ پر بھون کر بے خمیری روٹی اور کڑوے ساگ پات کے ساتھ کھا لے. اسے کچا یا پانی میں ابال کر ہرگز نہ کھانا، بلکہ اس کو سر اور پاؤں اور اندرونی اعضاء سمیت آگ پر بھون کر کھانا. 10ویں آیت، اور اس میں سے کچھ بھی صبح تک باقی نہ چھوڑنا، اور اگر کچھ اس میں سے صبح تک باقی رہ جائے تو اسے آگ میں جلا دینا، ختم کر دینا. اور تم اسے اس طرح کھانا کہ اپنی کمر باندھے اور اپنی جوتیاں پاؤں میں پہنے اور اپنی لاٹھی ہاتھ میں لیے ہوئے ہو. اور تم اسے جلدی جلدی کھانا، کیونکہ یہ فصح خداوند کی ہے. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے میں اس کی خاص برکت ہو. آئیے کچھ پل کے لیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے آپ کو آج خداوند کی آواز سننے کے لیے تیار کریں. ہاللیلویا جیسس، ہاللیلویا. خداوند سے آج اپنے لیے کلام کو مانگیے. خداوند کا روح یہاں موجود ہے. ہاللیلویا جیسس. اے زندہ مہربان آسمانی باپ، ہم دل کی گہرائیوں سے خداوند شکر گزاری کرتے ہیں آج کی اس خوبصورت گھڑی کے لیے، آج کے اس دن اس وقت کے لیے. پاک روح جی، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. آپ کے لوگ، آپ کی چرگاہ کی بھیڑیں آپ کے تخت کے سامنے سرنگوں ہیں. خداوند اپنے بچوں سے اپنے کلام کی قدرت کے وسیلہ سے بات کیجئے، سوچوں کو بدلیے، دلوں کو بدلیے. آج عجیب کام کیجئے خداوند. آپ کے بیٹے بیٹیاں جنہیں آپ کا یہ فضل میسر ہوا کہ اب وہ ایک نئے سال میں قدم رکھنے کو ہیں، خداوند آپ کے پاس جو آپ کے بچوں کے لیے پلانز ہیں، جو پالیسیز ہیں، جو اسٹریٹجیز ہیں، وہ اپنے بچوں پر آشکار کیجئے. اپنے بچوں سے ہم کلام کریے، ایک ایک جان کو چھوئیے، ایک ایک جان کو بلیس کیجئے، بڑی برکت دیجئے. یہ سب کچھ مانگتے ہیں مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور قدوس نام میں، آمین. عزیزوں، نیو ایئر، نیا سال، یہ ہر سال یہ ہوتا ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے نئے سال میں کچھ بھی نیا نہیں ہے. وہی مہینے، وہی تاریخیں، وہی دن. نیا سال تب تک نیا نہیں ہے جب تک سوچ نہیں نہ ہو، ہاللیلویا، جب تک رویے نہ بدلے، جب تک سوچ نہ بدلے، جب تک خیالات نہ بدلے. اگر میں پرانی سوچ، پرانی عادات اور پرانے خیالات کے ساتھ ہی سن 2022 میں داخل ہوتا ہوں، that is not a new year. میرے آج وہ پرانا ایئر بھی ہے. میں پچھلے سال بھی ہوجتا، میں ہون نہیں ہوجتا. نو نیو ایئر. نیا سال اس کے لیے نیا ہے جس کی سوچ نئی ہو جائے، جس کے خیالات نئے ہوں، جس کی عادات نہیں ہوں. وہ شخص کامیاب نہیں ہو پاتے جن کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، جن کے پاس کوئی فیوچر پلان نہیں ہے، جن کے پاس ٹارگٹس نہیں ہیں، ویژنز نہیں ہیں، جن کے سامنے پالیسیز نہیں ہیں. خداوند کو ایسے ویژن کے بغیر ادھورے لوگ پسند نہیں ہیں. خداوند یہ چاہتا ہے کہ خداوند کے لوگ ٹارگٹ کو سامنے رکھ کے چلیں، کسی اسٹریٹجی کو پلان کر کے چلیں. ان آیات میں بھی ہمیں کچھ ایسے دیکھنے کو ملتا ہے. خداوند یہ کہہ رہا دس از اے نیو ایئر. ارے یہ تمہارے لیے نیا سال ہوگا، لیکن یہ نیا سال اب ان سالوں سے مختلف ہوگا جو تم نے ملک مصر میں گزارے. اس کے لیے تیاری کرنی پڑے گی، اس کے لیے تمہیں پریپیئر ہونا پڑے گا. پریپریشن چاہیے، پلانز کرنے پڑیں گے، اسٹریٹجیز کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. یو شوڈ پریپیئر. ارے آپ کو تیاری کی ضرورت ہے، آپ کو پریپریشن کی ضرورت ہے. لیکن سوال یہ ہے تیاری کیسی، پریپریشن کیسی؟ خداوند
नए साल में अपने बच्चों से, अपने बेटे बेटियों से कुछ तवक्कुआत करता है, सब कुछ बदल जाएगा, हालात बदल जाएंगे, ख्यालात बदल जाएंगे, आदतें बदल जाएंगी, अगर खुदावंद की दी गई पॉलिसी, अगर उसके बताए गए प्लान पर अमल किया जाए। हम मिस्र की कहानी से अच्छी तरह वाकिफ हैं, हम सब जानते हैं 400 साल मिस्र के अंदर गुलामी की, 400 साल के बाद बड़ा कुर्बान हुआ, उसके बाद मखलसी मिल गई, रिहाई मिल गई। वो कुर्बानी मिस्र के अंदर टेम्पररी थी, वक्ती थी, आरज़ी थी। याद रखिएगा, पुराने एदनाम में और नए एदनाम में भी 400 साल का गैप है। जैसे ही वो 400 साल का अरसा पूरा हुआ, फिर बर्रा मुहैया कर दिया गया, और ये खुदा का बेअब बर्रा था। जब उस बर्रे की कुर्बानी हुई तो फिर न सिर्फ एक कौम को बल्कि तमाम बनी नौ इंसान को गुनाह की गुलामी से मखलसी मिल गई, रिहाई मिल गई, निजात मिल गई। God has a perfect plan। और मैं जब इन आयात को अपने सामने रखता हूँ, 3 ऐसी बातें हैं जो आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आप खुद भी खिदमत में इस चैप्टर का मुताला कीजिए, देखिए खुदा का रूह किस तरह से दिलों की आंखों को रोशन करता है। 3 ऐसे नुक्ते, 3 ऐसे प्लान्स जो मुझे इन आयात के अंदर नजर आते हैं। सबसे पहला पॉइंट डिनर, दूसरा पॉइंट डील। खुदा ने एक डील रखी इनके सामने, वो याद उसी करना है, ये करोगे तो ऐसा होगा। और फिर तीसरा पॉइंट डिपार्चर। हम सबसे पहले नुक्ते को अपने सामने रखेंगे, डिनर। खुदावंद ने इनको हुक्म सादर कर दिया, लीडर को अपॉइंट किया गया, मूसा को बुला लिया, हारून को बुला लिया। गॉड हैज अ प्लान। बनी इस्राएल कौम के जुम्मे सिर्फ इतना ही काम था कि वो तवज्जो से सुने, और जो सुना उसके ऊपर अमल किया जाए, सिर्फ इतना ही काम करना सीखे। खुदावंद ने प्लान दे दिया, अरे तुम्हारी जिंदगी में कुछ बदलने वाला है, गेट रेडी। सचमुच नया साल आने वाला है, यू विल सी, गेट रेडी। अरे तुम तैयार हो जाओ, अब दिन वैसे नहीं रहेंगे, अब हालात वैसे नहीं रहेंगे, अब तुम्हारी जनरेशन, अब तुम्हारे बच्चे दब दब के खौफ में पस्तहाली का शिकार नहीं रहेंगे। Everything will be changed. Get ready. अरे आपको तैयारी की जरूरत है, आपको प्रिपरेशन की जरूरत है। Are you ready? खुदावंद ने कहा, ये कलाम सादर हो गया पूरी कौम के लिए। You need to be prepared. आपको तैयारी की जरूरत है। खुदावंद ने कहा कि बर्रा ले लो और उसको ज़िबा किया जाए, और सिर्फ ज़िबा नहीं करना बल्कि उसको रोस्ट भी करना है, रोस्ट करके खाना है। लेकिन मैं हैरान था, Why lamb? बर्रा क्यों? What is the reason? And what is the purpose? अरे क्या वजह थी? क्या बर्रे के बगैर काम नहीं हो सकता? क्या कुर्बानी किए बगैर काम नहीं चल सकता? What is the reason? lamb क्यों? खुदावंद के अंदाज और खुदावंद के पैटर्न को समझने की जरूरत है। जब जब भी खुदावंद ने रहम दिखाया, जब जब भी खुदावंद ने एक नए आगाज का मौका दिया, बड़ा कुर्बान हुआ। पुराने अदम के अंदर खुदा ने आदम पे रहम दिखाया, बर्रे की कुर्बानी की, कुर्ते बढ़ा के पुआनी थे और एक नए आगाज का मौका दे दिया। नूह के दौर में जबरदस्त तूफान आया, नूह और उसका पूरा खानदान बच गया। नूह जैसे कश्ती से निकला, खुदावंद ने कहा, अरे रहम हुआ तुझ पे, कुर्बानी की जरूरत है। वहां पे बड़ा कुर्बान हुआ और एक नए आगाज का मौका मिल गया। कोहे मोरिया के पहाड़ पर इसहाक के बदले
अपना हाथ रोक दे। अरे अब सिर्फ आसमान के तारे और जमीन के जर्रों की बराबर नस्ल ना होगी। अरे अब तो मैं तुझे बरकत पे बरकत दूंगा। लोग डबल पोर्शन मिल गया। ना सिर्फ बरकत पे बरकत मिलेगी, अब तक तेरी नस्ल दुश्मन के फाटकों की मुख्तार होगी। लोग दुश्मन होंगे मगर वो कुछ कर ना सकेंगे, क्योंकि तेरे दुश्मन भी तेरे गुलाम होंगे। मैं तुझे बरकत पे बरकत बख्शूंगा। जब जब खुदावंद ने रहम दिखाया, जब जब खुदावंद ने नया आगाज का मौका दिया, बड़ा कुर्बान हुआ। हालेलुया। अरे हम भी उनके मिस्र में खुदावंद का रहम यह था कि जिस जिसके चौखट पे बर्रे का लहू होगा उस पर रहम होगा, और उसी को एक नए आगाज का मौका मिलेगा। This is the beginning। अरे ये एक नया आगाज है। नए आगाज के लिए बड़ा चाहिए। ये मैसेज है 10 साल का मेरे लिए और आपके लिए। अगर नया आगाज चाहिए, अगर हालात में, सूरत हाल में, जिंदगी में बदलाव चाहिए, तो मुझे और आपको बर्रे की जरूरत है। Where is the lamb? अरे बर्रा कहाँ है? बर्रे के बगैर तब्दीली नहीं हो सकती। This is the first requirement। और वहां पे एक बड़ी अजीब बात लिखी हुई है। वहां पे लिखा हुआ है बर्रे को ले लेना। इंग्लिश बाइबल जब इसका ट्रांसलेट करती है, वहां पे लिखा हुआ है, वहां पे यह लिखा है खरीद लेना। वहां पे लिखा हुआ है रिसीव द लैम्ब। और रिसीव के लिए इब्रानी बाइबल के अंदर जो वर्ड यूज हुआ है लेखाख। लेखाख का मतलब है अपना लेना। बर्रा ले आके कुंडी ना बांध के छट नहीं देना। अरे आपको बर्रा अपनाना पड़ेगा। अपनाने से मुराद अपनी फैमिली का हिस्सा बना के रखना पड़ेगा। 10 तारीख को बर्रा लेना है और फिर 14 तारीख को जाके उसको ज़िबा करना है। इसका मतलब कि बर्रा 4-5 दिन आपके साथ, आपके खानदान का हिस्सा बन के रहेगा। He will be your family member। लेकिन ऐसा क्यों? अगर 14 तारीख को बर्रा कुर्बान करना, 13 को जाके सिलाएंगे। 10 तारीख को क्यों? क्योंकि खुदावंद चाहता है कि खुदावंद के लोग अच्छी तरह समझे कि जब कोई अपना कुर्बान हो जाता तो कैसा महसूस हो रहा है। अरे वो लोग जिन्होंने बर्रे के साथ वक्त गुजारा है, उनको बर्रे से अपनाइयत हो जाती है। और जब फिर उसको खींच के कुर्बानी के लिए लेके जाते, बच्चे रोते, चीखे मारते हैं, अरे इसको कुर्बान ना करो। दर्द महसूस होता है। मसीह की कुर्बानी और मसीह का कफारा वही समझ सकता है जिसने पहले उसको अपनाया हो। अरे जिसने पहले उसको अपनाया हो। अरे जिसने मसीह को अपनाया नहीं, वो क्या जाने कलवरी का कफारा क्या था, वो क्या जाने वो फिदिया, वो इवज क्या था, वो क्या जाने उस लहू की कीमत क्या थी। पहले बर्रे को अपनाना पड़ेगा। This is the message of New Year। अगर आज तक शायद बर्रे का नाम ही सुनते आए, अगर आज तक शायद बर्रे का जिक्र ही करते आए, और आज तक बर्रे को अपनाया नहीं, अपने घराने, अपने खानदान का हिस्सा नहीं बनाया, दिस इज द टाइम। अरे आपके लिए मौका है। अब इस नए साल में दाखिल होना है तो पहले बर्रे को अपना बनाना पड़ेगा। हालेलुया। वहां पे लिखा हुआ है, खुदा कहता है कि इसको रोस्ट कर लेना, जितना खा सको खा लेना, बाकी सांभड़ा नहीं, बाकी सबको जला देना। मतलब पूरा टब्बर बह गया। अब ऐसा नहीं था कि बाप खा लेगा तो बेटा भी रच जाएगा। हर एक को खुद से खाना पड़ेगा, अंदर लेके जाना पड़ेगा। उसको अंदर लेके जाइए ताकि बर्रा सिर्फ नजर ना आए बल्कि आपके वजूद का हिस्सा बन जाए। अरे वो आपके अंदर उतर जाए, वो आपकी जात का हिस्सा बन जाए। हर एक शख्स को बर्रे का तजर्बा करना पड़ेगा। मेरे बाप, मेरे माँ या मेरे चाचा या मेरे दादे का मसीह तजर्बा मेरी जिंदगी के अयाम को बढ़ा सकता है, मुझे नजात नहीं दिला सकता। नजात के लिए मुझे खुद से बर्रे का एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। अरे मुझे खुद से उसका तजर्बा करना पड़ेगा। जब तक ये बर्रा
मेरी जात का हिस्सा ना बन जाए, मैं कैसे जानूं कि ये बर्रा कैसा है? शख्सी तजर्बा चाहिए। This is our New Year message. अरे इस नए साल में अगर आज तक बर्रे का एक्सपीरियंस नहीं किया, no spiritual experience, तो this is the time to surrender. अरे आज अपने आप को सरेंडर कीजिए और इस बर्रे को एक्सपीरियंस कीजिए। This is the message of New Year. खुदावंद ये दुआ को करता है कि मेरे लोग, मेरे बेटे बेटियां, अब जो नए साल में दाखिल हो रहे तो ये दुनिया की तरह नहीं। You have a time. दस्तरख्वान पे यहूदी लोग जब बर्रा रोस्ट करके रख देते हैं, उसकी बड़ी वैल्यू है, बड़े आराम से खाते हैं और सारी स्टोरी को रिवाइज करते हैं कि फसह के मौका पे हुआ क्या था। हम जब खरूज 6 बाब, अस्तिशा 4 बाब या 5 बाब पढ़ते हैं, वहां पे एक बात बार बार दोहराई गई है और वो बात ये थी कि यहोवा ने, खुदा ने अपने जोरावर हाथ से, अपने जोरे बाजू से, अपने कादरे मुतलक हाथ से अपने लोगों को मिस्र की गुलामी से निकाला। वहां पे जोरावर हाथ, जोरावर बाजू, ये कादरे मुतलक हाथ के लिए जो वर्ड यूज हुआ है, ज़रोआ। ज़रोआ का मतलब यहोवा का जोर, उसकी कुव्वत, उसका स्ट्रेंथ। और दस्तरख्वान के ऊपर ये जो बर्रा रोस्ट करके रखा होता है, इब्रानी में इसको ज़रोआ कहते हैं। इसका मतलब ये कि जब ये उस बर्रे को अपने अंदर ले रहे हैं तो ये उस बर्रे का गोश्त अंदर नहीं जा रहा, अरे ये यहोवा का जोर और उसकी स्ट्रेंथ को अपने अंदर ले रहे हैं, क्योंकि यही वो स्ट्रेंथ है, अरे यही वो जोर है जिसने इनको मिस्र की गुलामी से निकाला। हालेलुया। अरे यहोवा के लिए तालियां बजानी तो फिर जोरदार तालियां बजाओ। हालेलुया, हालेलुया। अरे दिस इज द मैसेज। ये नए साल का पैगाम है। आपको यहोवा के जोर की जरूरत है, आपको कादर मुतलक के जोरावर हाथ की जरूरत है। वो कौन सी ऐसी सोच है, वो कौन सी ऐसी आदत है, वो कौन से ऐसे ख्यालात हैं जिसने कोशिश करने पे भी आपको बांध रखा है? अरे ये गुलामी के बंधन, ये बेड़ियां, ये जंजीरें टूट जाएगी, लेकिन आप ये खुद से करने के लायक नहीं। यहोवा का जोर चाहिए। अरे यहोवा की ताकत, उस कादर मुतलक का जोरावर हाथ आपकी जिंदगी में चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। पहली गल सी डिनर, दूसरी बात डील, बर्रा कुर्बान करो और उसका लहू लेके चौखट पे लगाना है। और चौखट पे लगाना कैसे, वो पैटर्न भी खुदा ने दिया। खुदा ने कहा कि दाएं लगाना है, बाएं लगाना है और ऊपर लगाना है, बस। मौत का फरिश्ता आएगा, खुदा की जजमेंट आने वाली है। अरे जिस पे बर्रे का लहू होगा वो बच जाएगा। दिस इज द साइन। लेकिन एक चीज लेकर बड़ी अजीब थी। खरूज 8 बाब में मूसा फिरौन के पास जाता है, जाके अपील करता है, माई बाप जान दो मूसा, अरे हमारे लोगों ने ईद मनानी है, असी कुर्बानियां करनी है, तो मिस्र च असी कुर्बानी नहीं कर सकते। फिरौन कहता करो कुर्बानी, कोई टेंशन। कहता नहीं, ये मिस्रियों का नागवार है, मिस्र के अंदर कुर्बानियां मना थी। मूसा जाके अपील करता है, खरूज 8 बाब देखिएगा। मूसा जाके रिक्वेस्ट करता है, असी मिस्र च कुर्बानी करांगे तो इतने खाना चंगी लग जानी। मिस्रियां ने इकट्ठे हो जाना ढोड़े पत्थर लाके। हम नहीं चाहते कि कोई इस किस्म का बलवा हो, हमें बियाबान में जाने दे, हम वहां जाके कुर्बानियां करेंगे और वहां जाके ईद मनाएंगे। फिरौन से नो। अब खुदावंद कह रहा है कि हुण किते जान दी लोड़ नहीं, इत्थे ही करो कुर्बानी। अरे यहीं पे बर्रा कुर्बान करो और यहीं पे उसका लहू जो है तुम चौखट पे लगाओ। और जब इन्होंने मिस्र में रहते हुए कुर्बानी की, बर्रा कुर्बान किया, तो ये मिस्र की गवर्नमेंट को ओपन चैलेंज था कि अब हम मिस्र की सरकार के मतहत नहीं है। अब हमारा माई बाप फिरौन नहीं है कि हम
से चले। अब हम मिस्र से अलग हैं, अब हम मिस्र के नहीं हैं, अब हमारा माई बाप कोई और है। हमारे ऊपर उसका हुक्म चलता है जिसका हम हुक्म मान रहे हैं, और उसका हुक्म ये है कि तुम मिस्र में रह के कुर्बानी करो, और उसका नाम फिरौन नहीं, अरे उसका नाम यहोवा है। दिस इज द ओपन चैलेंज टू द गवर्नमेंट ऑफ इजिप्ट। ये खुला चैलेंज था फिरौन को भी और मिस्रियों को भी। लेकिन मैं हैरान था, चौखटों पे लहू लग गया। दिस इज वेरी स्ट्रेंज। लहू हमें कहां पे नजर आता है? लहू मस्बे के ऊपर दिखाई देता है। जहां पे बर्रा कुर्बान होता है उसी मस्बे पे बर्रे का लहू भी होता है। इसका मतलब कि जब हर एक घर के ऊपर लहू लगा, हर एक घर खाना रहा, हर एक घर उसका मस्बा बन गया। हालेलुया, दिस इज द मैसेज फॉर न्यू ईयर। अरे अब से आपका वजूद फकत आप कर रहे, ये उसका मस्बा बन जाए। बर्रे का लहू चाहिए, अरे बर्रे का लहू चाहिए। आपका न्यू ईयर दुनिया के न्यू ईयर जैसा नहीं चाहिए। दुनिया का न्यू ईयर फोका ते फीका ते बेरंगा। आपका नया साल, अरे आपका न्यू ईयर रंगीन है और ये लाल रंग से रंगा हुआ है। दिस इज द ब्लड ऑफ जीसस। अरे बर्रे का लहू चाहिए, इस नए साल में दाखिल होना है। हालेलुया, ये तवक्कुआत है खुदावंद की, ये उसकी रिक्वायरमेंट है। मेरे लोग नया साल मनाए तो लहू से रंग के मनाए। अरे उनकी चौखटों पे बर्रे का लहू लगा हो। खुदावंद ने कहा दाएं लहू लगाना है, बाएं लगाना है, फिर उधर भी लाना है। हम तशबीहाती तौर पे इसको सलीब से तशबीह देते हैं। लेकिन मैं हैरान था, मैं हैरान सी आकाश, क्यों दरवाजे पे लहू लगाए? बारी पे क्यों नहीं? दीवार पे क्यों नहीं? या बाहर किसी कोने पे क्यों ना लगी? वाई डोर? अरे दरवाजा क्यों? दरवाजा एक ऐसी जगह है जिसमें से आप गुजर के जाते हो। दरवाजा वो जगह है जिसमें से आप एक जगह को छोड़ते और एक जगह में दाखिल होते हो। That is the reason कि हम जब दरवाजे पे लहू लगा देखते हैं, हम इसको सलीब से तशबीह देते हैं, क्योंकि सलीब ही दुनियावी जिंदगी को पीछे छोड़ के अपनी जिंदगी में दाखिल होने का दरवाजा है। विदाउट क्रॉस आप अब्दियत में दाखिल नहीं हो सकते। दैट इज द वे। सलीब के बगैर अरे आप आसमानी मुकामों में दाखिल नहीं हो सकते। यू नीड क्रॉस, आपको सलीब चाहिए। ईमानदार की जिंदगी का सफर ऐसा हो, उसके कांधे पे सलीब हो और उसके लबों पे मुस्कुराहट हो, आंखों में शादमानी हो। मैं किताब पढ़ी ईमानदार का सफर, बड़ी खूबसूरत बात उसके अंदर लिखी। ईमानदार के सफर में ईमानदार का सफर दिखाया। ईमानदार तुरया जान गया, ठेठे खांदा, ताने सुनदा, गाला सुनदा, ला जान गया, मोटे ते सलीब चुकी दे हंसदा जान गया। ये ईमानदार है जिसको दुनिया की परवाह नहीं हो, अपनी मंजिल जानता है, क्योंकि जहां मैं जाता हूं वहां पे खुशी है, शादमानी है। ईमानदार के सफर में जिसके कांधे पे सलीब है, उसको रास्ते में अपनी ख्वाहिशें मिलती है, अपनी आदत मिलती है, रविशें मिलती है। लेकिन वो ईमानदार जिसके कांधे पे सलीब थी, उसके एक हाथ में हथौड़ा और एक हाथ में कील था। अपनी हर ख्वाहिश, अपनी हर आदत को रास्ते से पकड़ता, सलीब पे रख के कील से वहीं पे ठोक देता और आगे बढ़ता जाता। अपनी हर एक चीज यीशु के साथ सलीब पे कुर्बान करता जाता और अपने सफर में कामयाब रहता। ये है ईमानदार, और ये है ईमानदार का सलीबी सफर, जो अपनी हर एक बात, अपनी हर एक आदत, अपनी हर एक ख्वाहिश को सलीब पे गाड़ के आगे बढ़ता जाता, क्योंकि ईमानदार जानता है मेरा मुकाम क्या है। This is the message of New Year। बर्रा चाहिए, जोर चाहिए, बर्रे का लहू चाहिए। लेकिन मैं हैरान था,
लहू लगा दिया, दाएं लगाया, बाएं लगाया, ऊपर लगाया, थले नहीं लाया। हम तशबीहाती तौर पे, गौर से सुनिएगा, हम तशबीहाती तौर पे कहते हैं दिस इज क्रॉस। टेक्निकली क्रॉस बनती नहीं है, ये क्रॉस नहीं बनती, टेक्निकली नहीं बनती, हम तशबीहाती, सिंबॉलिकली हम बोलते हैं। व्हाई सिंबॉलिकली, क्यों तशबीहाती? क्योंकि दरवाजे के बीम लकड़ी के थे और लकड़ी के बीम पे लहू लगा, हमें तलवरी पे एक लकड़ी नजर आई जिसके ऊपर लहू लगा, हमने तशबीह दे दी कि यस दिस इज अ सिंबल ऑफ क्रॉस। टेक्निकली देखा जाए, खुदावंद ने अपने लोगों को कहा कि तुमने बर्रे का लहू लगाना है, एक निशान लहू का दाएं लगाना है, एक बाएं लगाना है, एक ऊपर लगा देना है। दाएं लहू, बाएं लहू और ऊपर लहू, ये ट्रायंगल बन जाता है। एक्चुअल में टेक्निकली देखो दिस इज ट्रायंगल। अगर बॉटम पे ब्लड स्पॉट होता तो फिर हम कहते हैं यस दिस इज क्रॉस। बॉटम पे कोई ब्लड का निशान नहीं है, 3 जगह पे खून का निशान है, दाएं बाएं और ऊपर, और ये मुसल्लस बनती है, ये ट्रायंगल बनता है। और ऐसा ट्रायंगल जिसका मुंह पर आसमान की तरफ है। मतलब बनी इस्राएल कौम ने जब ये निशान लगा दिया, जब ये ट्रायंगल बन गया जिसका मुंह पर आसमान की तरफ से, आसमान की तरफ है, तो ये इस बात का निशान था कि ये वो कुर्बानी है जो इंसान की तरफ से की गई ताकि खुदावन के आने वाले अजाब से बचा जा सके। एक और ट्रायंगल हमें नजर आता है कलवरी में सलीब के ऊपर, जब खुदावन यीशु मसीह के हाथों पे कील ठोंके गए, एक कीले थे तो एक केले थे, तो तीजा केले किथे पैर। यहां पे भी एक ट्रायंगल बना, लेकिन इस ट्रायंगल का मुंह नीचे की तरफ है। उस ट्रायंगल का मतलब ये, मिस्र के अंदर तो कुर्बानी इंसान की तरफ से की गई, लेकिन कलवरी पर कुर्बानी खुदा की तरफ से की गई ताकि बनी और इंसान खुदा के आने वाले अजाब से बच सके। हालेलुया। मतलब खुदा इंसान को बता रहा है कि उसके अजाब से किस तरह से बचा जा सकता है। इंसान इस काबिल नहीं है कि खुद से कुछ प्लान करके इलाही अजाब से बच सके। एक और गल, तुसी ये दोवें ट्रायंगल जोड़ दो तो इस्राएली झंडे का तारा बन जाएगा, 6 पॉइंट्स बन जाएंगे। दिस इज अ स्टार ऑफ डेविड। वो कहते हैं कि स्टार ऑफ डेविड का मतलब ये शील्ड ऑफ डेविड, ये वो निशान है जो दाऊद की पनाहगाह है। खुदावंद अपने बच्चों से ये तवक्को करता है, न्यू ईयर फोका के सुखा नहीं चाहिए, बड़ा चाहिए, बर्रे का जोर चाहिए और बर्रे का लघु चाहिए। पहली बात डिनर, डील, आखिरी पॉइंट डिपार्चर। खुदा ने उनको हुक्म दिया तो जी हैप्पी मील तैयार पड़ा, खाना के जुतियां कस लो, चौकर पाओ, गमछे बांध लो, तो लाठियां चुक लो। कमर बांधना और लाठी का थामना ये इस बात की निशानी थी कि इट्स नॉट अ शॉर्ट जर्नी। लाठी लेके यहूदी तभी निकलते थे जब लंबा सफर हो, जब दूर दराज का सफर था, गली मोहल्ले से आने जाने लाठियों की कमर बांधने की जरूरत नहीं पेश आती थी। और जूतियां ये लोग अपने घरों से बाहर उतारते, घर के अंदर ये नंगे पांव घूमते थे। जूती बांध लेने का मतलब ये दे आर गोइंग आउटसाइड नाउ। और खुदावंद कह रहे कि गेट रेडी, अंदर नंगे पैरी नहीं, कमरे वाले अंदर भी बूट कस के पाओ। सूरज ढलने वाला है, तारीख बदलने वाली है, न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला है। गेट रेडी, बी प्रिपेयर्ड, वी हैव वेरी शॉर्ट टाइम। अरे आपको तैयार होने की जरूरत है, बी रेडी। यहोवा की जजमेंट होने वाली है, गेट रेडी। अरे उसका अजाब नाज़िल होने वाला है, गेट रेडी। जब हम ये कहते हैं कि खुदा की जजमेंट आने वाली है तो याद रखिएगा उसकी जजमेंट ईमानदारों के लिए नहीं होगी। अरे उसकी जजमेंट अब दुनिया के लोगों के लिए होगी, क्योंकि मेरी और आपकी जजमेंट तो कोहे कलवरी
सलीब पर पहले से हो चुकी, फिदिया हमारा दिया जा चुका है। अब हमारी जजमेंट नहीं है, हमारे साथ तो वादा है कि ये लोग तो यीशु के दाहिने हाथ बैठकर अब कौमों का इंसाफ करेंगे। You will be the judge। अब जब हम कहते हैं रोज़े अदालत आने वाला है, तो ये रोज़े अदालत दुनिया के लिए है, खैर ईमानदारों के लिए। ईमानदारों के लिए रोज़े अदालत नहीं है। अरे ईमानदारों के लिए तो ये वो दिन होगा जिस दिन हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएंगे, लोकेशन बदल जाएगी, स्टेटस बदल जाएगा, और खुदा अपने लोगों से ये कह रहा है, गेट रेडी, बी रेडी, क्योंकि खुदा आने वाला है। अरे वो विजिट करने वाला है। ऐसा ना हो कि वो विजिट करे, बर्रे का लहू ना पाए, आप में से कुछ लोग छूट जाए। चार्ल्स स्पर्जन, खुदा का बंदा, कहता मैं एक चीज से बड़ा हैरान होऊंगा जब मैं आसमान पे चला जाऊंगा। कहता मैं हैरान हो जाऊंगा जब मैं उन लोगों को देखूंगा जिनकी बाबत मैं जमीन पे सोचता था, पूरे अभी खुदावंद की हुजूरी से पहुंचेंगे कि नहीं। जब मैं उनको खुदावंद की हुजूरी में देखूंगा, मैं हैरान हो जाऊंगा। कहता उससे भी ज्यादा मैं हैरान तब होऊंगा जब मैं उन लोगों को खुदावंद की हुजूरी में ना पाऊंगा जिन्हें हर रोज गिरजे आते, बड़े गीत गाते, बढ़िया तालियां दे, बड़े नारे मारते, जब वो मुझे खुदावंद की हुजूरी में नजर ना आएंगे तो मैं हैरान हो जाऊंगा। अरे मुझे और आपको तैयारी की जरूरत। दिस इज द टाइम टू प्रिपेयर। God is going to visit। वो विजिट करने वाला है, लेकिन उसके लिए कुछ छोड़ना पड़ेगा। खुदावंद की रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ेगा। मिस्र के अंदर जितने नाराजगी सी, जितने को कर्जा लेना देना सी, अरे लीव इट, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। ये मैसेज है आपके लिए और मेरे लिए। अरे नए साल में दाखिल होने, पिछला सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। वो रंजिशें, वो शिकवे, वो आदतें, वो बातें, वो ख्यालात जिसने आज तक मिस्र जैसी गुलामी में बांध रखा, अरे जब तक वो छोड़ेंगे नहीं, आगे दाखिला ममनू है। You need to be ready। अरे वो लोग जो खुदावंद के तकाज़ों को पूरा करते हैं, उनके लिए खुदावंद की तरफ से वादा है। किनु वादा याद है? अरे हमारी सिस्टर ने अभी तो वादा पढ़ा था, अस्तिष्ठा कत्ती बाब दी 8वीं आयत। अरे मैं तुझे हरगिज़ ना छोड़ूंगा, मैं तुझसे दस्तबरदार ना होऊंगा, अरे मैं तुझसे पहले तेरे आगे आगे चलूंगा, तू मत डर, तू खौफ ना कर। अरे एक नया आगाज होने वाला है, तू खौफ ना कर। मैं तेरी सोच, तेरी आदत, तेरे दिल, तेरे बातन को यकसर बदलने वाला हूँ, तू खौफ ना कर। अरे मैं तेरी सोच, तेरे किरदार को बदल के रख दूंगा। अरे मैं तेरे लिए रास्तों को खोल दूंगा, मैं तेरे लिए दरवाजों को खोल दूंगा, तू खौफ ना कर, क्योंकि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। हालेलुया। दिस इज अ न्यू ईयर मैसेज। खुदावंद अपने बच्चों से कुछ तौक़ुआत करता है, जो उसकी तौक़ुआत पर पूरा उतरते हैं, उनके लिए मैसेज ये है, मैं तेरे आगे आगे चलता हूँ। लेकिन आपसे वो तौक़ुआ ये करता है, You need to be prepared। आपको तैयारी की जरूरत है। बर्रा चाहिए, बर्रे का जोर चाहिए, और बर्रे का लहू चाहिए। हालेलुया। आवाज कोई नहीं आई। हालेलुया, हालेलुया। आइए इस बर्रे के लिए जोरदार तालियां बजाएं। अच्छा चलो जोरदार आवाज करें, जोरदार नहीं बजाएंगे, जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे ये लोग जब नए साल में दाखिल हो रहे थे, ये खुश सन, तुसी ये भी मायूस हो। अरे खुदावंद ने जो बात की है वो वाकई सच है। आप प्लान करके देख लीजिए, मेरी गारंटी है। आज अपना प्लान कीजिए, अपनी लाइफ प्लान कीजिए, अपना बिजनेस प्लान कीजिए, आप अपनी शादीशुदा जिंदगी प्लान, कुछ भी प्लान कीजिए, फिर उस प्लान को खुदावंद के आगे रखिए, तो आपके लिए वादा यह है, तू मत डर, टेक अ स्टेप, तू मत डर। अरे खौफ न कर, तू हिम्मत कर, तू कदम बढ़ा, अपने मिस्र जो बाहर निकल
अपने आगे आगे देखेगा। जब तू अपने कारोबार में हाथ बढ़ाएगा, अरे तू अपने हाथ के साथ मेरा हाथ भी देखेगा। तू खौफ ना कर, मैं तुझसे पहले तेरे आगे आगे जाऊंगा। हालेलुया। This is our New Year message. Plan your life and take the blood of Jesus. अपने मनसूबों पे बर्रे का लहू लगाइए, मज़ा कीजिए और ईमान से कदम बढ़ाइए। आप अपने कदमों के साथ खुदावंद के कदम और अपने हाथों के साथ यहोवा का हाथ देखोगे। हालेलुया।